everyone, Nivedita Dinesh Vlogs ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. Today we are finally traveling India. ಎಂಕಲ ಊರು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯ ಪನ್ನಂಡ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತಿಜ ಎಂಕಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಕ್ಲೆಗ್ शॉक ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग किसी को बताया नहीं. अभी इंडिया में जाके देखेगा इन लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा. फैमिली इन लोगों किसी को भी बताया भी नहीं और हम लोग ये डिसीजन भी लिया वो तुरंत लिया था. विद इन 2 weeks हम लोग जाने का प्लानिंग किया. इसलिए अभी देखेगा इंडिया जाने के बाद कैसा रहेगा इन लोगों का सरप्राइज. और आप लोग भी हम लोगों का वीडियो को लास्ट तक देखने का है, ज़रूर देखने का. और आप लोगों का हमारा वीडियोस पसंद आएगा तो एक लाइक देने का. अभी हमारा लगेज सब रेडी है. अभी टाइम हो गया 10:15. अभी हम लोग 10-15 मिनट में इधर से निकलते हैं. ಇದು ಮುಲ್ಪದ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು. ಅಲ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಉಲಾಯಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಚಿದ ಪನ್ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಡೆಪೋರ್ಚಿಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಈಗ ಚೆಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು फ्लाइट 8 घंटे का. फ्लाइट अभी और कितना 1 घंटा है. इधर डिपार्चर टाइम इधर का 14:50. ಬೊಕ ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆಂಟಿ ಆರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈದೇರಿ ಇಂಕಲ್ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ಲ ಆರು ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಲು ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತು 12:30 ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದ ಕುಲ್ದ. हम लोगों को एयरपोर्ट से अंदर आने के बाद में कुछ वीडियो निकालने के लिए तो हम लोग अंदर आ गए. अभी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं. अभी हम लोगों के पास बोर्डिंग पास सब कुछ मिल गया. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರಿ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಲಾಯ್ಡುಲ್ಲ. Aboard this Ethiopian Airlines Boeing 737-800 aircraft. Please pay attention to the demonstration of important safety features and procedures. Please keep your seatbelts fastened while seated. To open an over-wing exit, reach under the cover and pull the handle down. Some electronic equipment may interfere with aircraft systems and must be switched off when the seatbelt sign is on for takeoff and landing. Mobile phones should be switched off at all times. And the armrest down. Your seatbelt must be tightly fastened, ready for takeoff. Please refer to the safety card in front of you for more information. Welcome, Badara. Cabin crew, prepare for takeoff.
ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡುದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಡಿಸ ಬಾಬಾಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಫಿ ಮಾದ ಪರ್ದು ಕಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೋಸ ಪೂರ ತಿಂದುದು ಮತ್ತು ಕುಲೋಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈದ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 minutes ಎಂಕ್ಲೆಗ್ मुंबई फ्लाइट पोयरे। अभी तक बोर्डिंग नहीं हुआ। अभी टाइम कितना हो गया? अभी टाइम तो 11 बज गया इधर का, इथियोपिया का। अभी हम लोग एडिस अबाबा में। अभी और एक फ़्लाइट है, वो भी कम से कम 5 घंटा का फ़्लाइट है। देखिएगा मुंबई पहुंचने के बाद आप ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಗಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂದ ಪನ್ನಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತೆರ್ಗಂದು ಎಂಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇಕ್ ತುಳುಲ ಉಂಡು ಹಿಂದಿಲ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಲ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಡ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಲಾಗ್ಡು ದಾದನಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತು ನಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಗ್ಡು ದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವು ಮಾತಲ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಲಕ ಈಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಂಬೈಡುಲ್ಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚ್ ಆತ ಆಂಡ್ ಅದಾದ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡ ಮುಲ್ಪ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मुंबई रीच हो गए। मुंबई रीच होते ही हम लोगों को पहला कोविड टेस्ट करने का प्रोसीजर था, इसलिए मैं पहले ही एक वेबसाइट से मेरा प्री बुकिंग किया था। मैं वो लाइफ नीटी वेलनेस वेबसाइट से, वो वेबसाइट में मैं रियल टाइम क्वालिटेटिव RT-PCR डिटेक्शन ऑफ SARS-CoV-2 COVID-19 वो टेस्ट का 500 रुपीज़ का बुकिंग किया था। और वो बुकिंग किया था और वो मैं काउंटर में आने के बाद में वो टेस्ट करने के लिए उसका रिपोर्ट वो टेस्ट करेगा तो उसका रिपोर्ट मिलने के लिए 8 आवर्स लगेगा। और मेरा मुंबई टू मैंगलोर कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वो टाइम था अराउंड 6 आवर्स। तभी मेरे को वो फ़्लाइट मिस होने का चांसेस है। और बाद में इन लोगों का और एक ऑप्शन है, उसी काउंटर में इन लोग और एक ऑप्शन दे रहा है रैपिड टेस्ट। उसका प्राइस है अराउंड 1950 है। और इन लोग उसका रिपोर्ट बोल रहा है विदिन 1 आवर रिपोर्ट मिलेगा बोल रहे। इसीलिए हम लोग को अच्छा चॉइस था वो रैपिड टेस्ट का, क्योंकि हम लोगों को रिपोर्ट टाइम में नहीं मिलेगा तो हम लोगों का फ़्लाइट मिस हो जाएगा। इसलिए हम लोग वो टेस्ट को चूज़ किया और तुरंत उधर टेस्ट किया और विदिन 1 मिनट आई रिसीव्ड माई रिपोर्ट। आई डोंट नो दिस इज़ हाउ दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस और दिस इज़ द रियल थिंग्स और वी डोंट नो। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन मुंबई एयरपोर्ट। एंड when I reach another terminal, उधर भी ऐसे ही था, लगेज का प्रॉब्लम था। मैं ऑलरेडी एक लगेज एक्स्ट्रा 15 किलो मैं बुक किया था। बाद में क्योंकि डोमेस्टिक में एक लगेज अलाउड है 15 किलो प्लस 7 किलो हैंड बैगेज, उससे ज़्यादा लगेज रहेगा तो हम लोग एक्स्ट्रा बुकिंग करना पड़ेगा। पहले इन लोग बोलते हैं हम लोगों को बैगेज को वेब चेकिंग करना पड़ेगा। वेब चेकिंग हम लोग नहीं करेगा तो काउंटर में करेगा तो 200 रुपीज़ पर पैसेंजर इन लोग चार्ज करते हैं। ये पहली बार हो रहा है। और हम लोग पहला टर्मिनल 2 में हम लोग अराइवल में हम लोगों को उधर इंटरनेट था, तभी हम लोग एक बार एक्सेस किया था। और टर्मिनल 1 में वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक ही बार एक्सेस करने का अलाउड है। इसलिए मेरे को इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस करने के लिए नहीं हो गया। बाद में काउंटर वाला ही इन लोग मेरे को बना के दे दिया, चेक इन बना के दे दिया। बट ये मैं पहली बार सुन रहा है ऐसा ये सिस्टम। इसका पहले ऐसा नहीं था, कभी भी मैं नहीं सुना, क्योंकि मैं इतना बार ट्रैवल किया
कभी भी हम लोग चेक इन काउंटर में पर पैसेंजर 200 रुपीज़ चार्ज करने का ये सिस्टम ये मैं पहली बार इंडिगो में देखा है, क्योंकि मैं इतना एयरलाइंस में ट्रैवल किया था, कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैं देखा एक काउंटर में उन लोगों का वेइंग स्केल में एक प्रॉब्लम है। एक में 1 किलो एक वेट दिखाता है, दूसरा में और एक वेट दिखाता है, दूसरा और तीसरा में और एक वेट दिखाता है, बाहर दूसरा एक वेइंग स्केल है उसमें एक वेट दिखाता है। अभी हम लोगों के पास कैसे हम लोग एग्जैक्ट वेट को कैसे चेक करेगा? हाँ, उन लोग इतना बोलेगा उतना हम लोग पे करके जाएगा, तो ये क्या सिस्टम है? हाँ? ऐसा कोई पैसेंजर को इधर आएगा तो ऐसा परेशान हो जाएगा, तो कोई भी पैसेंजर कैसे ट्रैवल करेगा? इसका कौन देखता है? कोई भी देखने वाला है नहीं। हाँ? अभी एक वेइंग स्केल को कैलिब्रेशन करने के लिए किसी के पास नहीं होगा, तो ये सिस्टम क्या है? नॉर्मली एक कैलिब्रेशन है, उसमें एक वेइंग स्केल में एक आता है, दूसरा में एक आता है, तीसरा में एक आता है, ये क्या है? ऐसा तो कभी होने का चांस ही नहीं है। ये पैसेंजर देखे एक इंटरनेशनल ट्रैवल करके आता है तो इतना लॉन्ग आवर्स जर्नी रहता है, इसमें तो पैसेंजर इतना टायर्ड रहता है, तभी आने के बाद ये सब प्रॉब्लम फेस करने के, तो कोई पैसेंजर कैसे ट्रैवल करेगा? वो भी कोई काम करके बाहर से पैसा कमा के लेके आता है, इधर आके सब जगह में आपको तोड़ो बोल के सब पे करना पड़ेगा, तो ये क्या सिस्टम? अभी देखिए मेरे को कोविड वैक्सीन ये RT-PCR टेस्ट का थी, मैं पहले 500 रुपीज़ का बुकिंग किया था, प्री बुकिंग किया था, अभी वो उसका नहीं होता है। अब मैं दोबारा वो रैपिड टेस्ट के लिए दोबारा पे किया, अभी मैं वो वेबसाइट में जाके फिर मेरा रिफ़ंड के लिए मैं रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सब क्या है? उसका पहले इन लोगों को वेबसाइट में लिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए 8 आवर्स चाहिए, 6 आवर्स चाहिए रिपोर्ट के लिए, आप लोगों का फ़्लाइट कैंसिल होगा। ये सब किस सिस्टम नहीं है, तो क्यों डायरेक्टली काउंटर में जाने के बाद में ये प्रॉब्लम हो? ये सब बताना चाहिए, ऐसा बताया नहीं बताएगा तो कैसे मालूम पड़ेगा पैसेंजर? हम लोग तो ये पहली बार ऐसा प्रॉब्लम फेस किया, अभी इतना टायर्ड है, अभी भी हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन रीच नहीं हो। अभी मालूम नहीं है अभी मैंगलोर में फाइनल डेस्टिनेशन रीच होने के बाद क्या प्रोसीजर है, क्योंकि नॉर्मली उधर प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी कोविड टेस्ट रिपोर्ट है, हम लोग नेगेटिव है, अभी स्टिल 72 आवर्स वैलिड भी है, तभी हम लोगों को उधर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग देखेगा उधर जाने के बाद क्या क्या इन लोगों का उधर का प्रोसीजर है, देखते हैं, बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूँ।